चलिए, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स जर्नल केस स्टडी नंबर 2 में। ठीक है, केस स्टडी 1 अपन ने अभी डिस्कस कर ली है, कल ये वीडियो डाली थी। और आज स्टूडेंट्स जर्नल की केस स्टडी नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो केस स्टडी नंबर 2 है वो केस स्टडी 1 का सीक्वल है, मतलब उसी की स्टोरी को इंस्टीट्यूट ने एक्सटेंड करके नए नए क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, फटाफट से खत्म करते हैं। रिकॉर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चंस, MCQs. Which of the following statements are true regarding accounting for CYPL's contract with NGSL? FR का क्वेश्चन है। With respect to CYPL's going concern issue, which of the following statements is true? Audit का क्वेश्चन है, going concern assessment का। With reference to appropriate model, calculate the Altman Z score for CYPL. Using this model, what can be your conclusion about CYPL's financial health? ठीक है, देखते हैं। Which of the following will not be helpful in improving the long-term sustainability of sales and EBIT of CYPL? देखते हैं। Which of the following is the remuneration committee most likely not to consider as part of Mr. Ramakant Bhushan's performance assessment for 26-27, 27-28? In September 25, in the immediate aftermath of the pipeline accident, which of the following could have possibly occurred? SCMP का वापस क्वेश्चन है, ये बार्गेनिंग पावर वगैरह देख के समझ आता है। Which of the following is the primary reason for DFPL and Greenspan GmbH decided to enter into joint venture for the Gopalpur facility instead of pursuing a strategic alliance? वापस से CMP का क्वेश्चन है। 7 MCQs, ठीक है, 7 MCQs है, उसमें 9 थे। Descriptive questions. In his office, Mr. Jeevan asks you to categorize the stakeholders based on their power and interest in the issues affecting the Gopalpur and Brahmpur facilities. Your tasks are as follows. Analyze the stakeholders' levels of interest and influence using Mendelow's matrix for both Gopalpur and Brahmpur facilities. Second, advise CYPL on an action plan to effectively manage these stakeholders based on your analysis. Mendelow's matrix का ना मैंने कंसेप्ट आपको कराया हुआ है, मैं वापस करवा दूँ। हाउ शुड CA श्रीहरि एडवाइस मिस्टर ललित शाह ऑन वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स मैटर्स कंसर्निंग CYPL? IDT का क्वेश्चन। ये मेंडेलोस मैट्रिक्स वाला ना कंसेप्ट मैंने एक बार डेप्थ में कराया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ऐसा होगा तो एक वीडियो डाल दूंगा, नहीं तो वापस करवा दूंगा। मैं एक बार देख लेता हूँ अभी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉप यील्ड प्राइवेट लिमिटेड, मैंने बोला ना ये जो केस स्टडी है वो उस केस स्टडी का सीक्वल है, तो सीक्वल में नहीं थोड़ा फ्लैशबैक दिखाता है, वैसे ही पिछली जो केस स्टडी उसका यहाँ तक उस केस स्टडी का फ्लैशबैक दिखाया गया। अपन क्विकली एक सांस में पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ना चाहिए क्योंकि रिस्क नहीं लेते इसलिए। Dakshin Fertilizers and Petrochem Limited is a reputed company manufacturing industrial chemicals, crop nutrition and mining chemicals. Headquartered in Thiruvananthapuram, Kerala, DFPL's main manufacturing facilities in Ellore, Ernakulam, along with additional plants in Dahej, Hisar, Brahmpur. These facilities produce specialty products that serve critical sectors in the Indian economy, including agriculture, pharma, mining and infrastructure. The units in Hisar and Brahmpur are currently small-scale units. The board of DFPL decided to set up these units in order to have a pan-India presence. ये सब चीज़ें पिछली केस स्टडी से रिपीट हो रही है, इसलिए मैं एक सांस में पढ़ रहा हूँ। In the coming year, DFPL plans to deepen its market presence in the northern and eastern India. As and when this is achieved, the scale of production at these units will be ramped up to cater the increased demand. The board felt that this ramping up of capacity will be easier if there is an already existing manufacturing set up in these areas. Setting up a new manufacturing facility at Gopalpur and closure of Brahmpur facility, ये लास्ट केस स्टडी का लास्ट पॉइंट था, वहां से कंटिन्यू हो रही है। DFPL has established strong foothold in the crop nutrition market, including fertilizers, with significant penetration in Odisha and northern belt of Andhra Pradesh. To capitalizing on increasing demand in these markets, the company poised to expand its production capacity, paving a way to increase market presence. The fertilizer industry operates under stringent regulations and is supported by government subsidies aiming at ensuring affordability for farmers. In such a regulated environment, achieving cost efficiencies is crucial for enhancing profitability. As a capital-intensive sector, the fertilizer industry depends heavily on economies of scale, which play a vital role in driving these efficiencies.
To meet its expansion goals, DFPL plans to set up a new manufacturing unit exclusively for fertilizer production with a planned capacity of 10 lakh metric ton per year. The facility will produce both urea and non-urea based fertilizers requiring a substantial and consistent supply of natural gas, a key raw material from fertilizer manufacturing. Currently, Gaspro India Limited, through its Paradeep unit, is primary supplier of natural gas to DFPL's Brahmpur facility. However, the Brahmpur units operate at a modest scale, मतलब छोटे scale पे, making it a smaller customer for GIL. Recently, GIL has commissioned a larger liquefied natural gas facility in Gopalpur, Odisha, which has a capacity to meet the significant natural gas demands of DFPL's proposed fertilizer unit. Leveraging its strong business relationship with GIL and cost benefits achievable through economies of scale, DFPL's board of directors has decided to establish the new fertilizer manufacturing unit in Gopalpur, Odisha. GIL's management has also shown interest in this initiative as it represents significant growth opportunity for their business. लास्ट टाइम का पूरा फ्लैशबैक था ये. फ्लैशबैक को मैं बहुत स्मॉल स्केल में बता दूं तो हमारा एक वेंडर है, ठीक है, जो हमको नेचुरल गैस सप्लाई करता है. वो वेंडर ने अपनी फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड किया एक दूसरी लोकेशन पे. तो हम बोला कि तू मेरे आगे आगे, मैं तेरे पीछे पीछे. तो अपन वेंडर के पीछे पीछे गए और एक वहीं पे जिसने वेंडर ने जो प्लांट सेटअप किया है वहाँ पे अपने एक बड़ा फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट सेटअप कर लिया. ठीक है, वो कैसे सेटअप किया, एक नई कंपनी बना के. वो कंपनी क्या है, क्रॉप यील्ड प्राइवेट लिमिटेड. A new company, Crop Yield Private Limited, was established as a joint venture between DFPL and Greenspan GmbH, a globally reputed fertilizer company headquartered in Germany. Greenspan is widely recognized for its advanced fertilizer technologies and energy efficient manufacturing. This collaboration brings together DFPL's deep understanding of the southern market and its growing presence in the eastern market through Brahmpur unit, making CYPL DFPL's largest initiative in the fertilizer sector. मतलब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग. For Greenspan GmbH, this venture makes an entry into the Indian market, an important step in its global expansion. मतलब जो DFPL है हमने एक्सपैंड किया और जो ग्रीनस्पैन है उसने इंडिया में एंटर किया. Greenspan GmbH will provide technical assistance to CYPL, facilitating the production of modern, energy efficient manufacturing techniques. Additionally, its subsidiary owns state-of-art machinery with cutting-edge technology and superior processing capacity, far beyond what DFPL would independently build or acquire within India. मतलब इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है उससे कई ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी किसके पास है, अपनी जर्मन जॉइंट वेंचर के पास. This machinery, valued at 120 crores, will account for almost 40% of the total plant and equipment requirements of CYPL's new facility. By leveraging this advanced technology, CYPL aims to achieve the production scale necessary to capitalize on cost efficiencies through economies of scale. अभी तक कहानी ही चल रही है, ठीक है. Negotiations and project planning are currently at an advanced stage. Recognizing DFPL's limited experience in negotiating JV agreements, both parties have engaged Pro International, a leading consulting firm, in assisting and finalizing the agreement. मतलब मेरे को और मेरी जो जॉइंट वेंचर है उसको नेगोशिएशन में इतना कुछ खास पता नहीं पड़ता, तो हमने एक कंसल्टेंट रख लिया कि भाई हमारे बिहाफ पे तुम लोग डील फाइनलाइज करो. PI's responsibilities include guiding the joint venture's legal and regulatory compliance, facilitating the establishment of the manufacturing facility at Gopalpur, and providing management consultancy services to ensure smooth operations and strategic alignment. मतलब सिर्फ और सिर्फ वो डील के लिए नहीं है जो कंसल्टेंट है, वो डील होने के बाद, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देगा. कौन? ये प्रो इंटरनेशनल. मिशन ऑफ CYPL: be a good corporate citizen, assisting to Indian farmers to improve their yield while also generating wealth for our shareholders by following environment and social friendly practices. Vision: most preferred supplier of fertilizers in India. Very good. By September 24, the company had already purchased land worth rupees 100 crores in Gopal. During this time, negotiations for a multi-year purchase agreement between CYPL and Gaspro India Limited for the supply of नेचुरल गैस कमेंट्स. अच्छा, वेंडर के पीछे पीछे अपन गए तो वेंडर के साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना. CYPL's management plans to initiate discussions with the suppliers of these materials after operations begin. एक मिनट, मैंने एक लाइन खा गया.
Other raw materials required for production are readily available in adequate quantities in the open market. CYPL's management plans to initiate discussions with the supplier of these materials. मतलब कौन से? Other raw materials, natural gas नहीं, other raw materials. After the operations begin, पहले एक काम करते हैं, natural gas का supply sort करते हैं, बाकी का तो मिल जाएगा open market से. As the immediate priority source is securing natural gas on favorable terms and conditions. वो यही बोल रहा है कि भाई natural gas का deal पहले करो, बाकी का फिर करते रहना. CYPL has also procured plant and machinery for the unit which require constant maintenance. To address this, the company has entered into short-term contracts lasting less than a year for factory consumables, primary tools, and other maintenance equipment. These consumables are supplied by small enterprises located in the industrial area of Gopalpur. Since full-fledged production operations have not yet begun as of 24, CYPL is just one of many customers served by these suppliers. मैंने मशीन लिए, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, मशीन लिया, मशीन लेके मैंने फैक्ट्री में रख दिया, लेकिन उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा. तो मेंटेनेंस के लिए मैंने क्या किया, वहाँ के लोकल वेंडर से 1 साल या 1 साल से कम के कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए. क्यों? अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया तो मैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों एंटर करूँ, अभी काम चला लेता हूँ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट से. ऐसा बोल रहे हैं. DFPL's facility in Brahmpur will be shut down following the establishment of new facility in Gopalpur. Workers have been given an option either to relocate to Gopalpur to continue their employment or accept 1 month severance pay and exit the company. या तो उधर आओ या तो निकलो. Concerned by the developments detailed in the mail communication, DFPL's chairman Mr. Venkat Ravi and Greenspan GmbH's managing director Mr. Gerhard Braun has approached Mr. Jeevan Sampath, a partner at a consulting firm Pro International. The following is the excerpt from their meeting. देखते हैं. मतलब कोई तो मेल आया, कोई ये मेल आया. कौन सा मेल? ये मेल. ठीक है, ये मेल है ना. हाँ, और इस मेल के रिलेटेड मीटिंग हो रही है. किसके बीच में? DFPL का चेयरमैन, ग्रीनस्पैन का MD और अब जो कंसल्टिंग फर्म है उसका पार्टनर. क्या है वो पढ़ते हैं. जीवन, वी आर वरिड अबाउट द पब्लिक रेजिस्टेंस टू आवर प्रपोज फैसिलिटी इन गोपालपुर. हम जहाँ पे नई फैसिलिटी खोलना चाहते हैं वहाँ पब्लिक रेजिस्टेंस आ रहा है. पब्लिक रेजिस्टेंस मतलब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. If we are required to shift the facilities as farther away as 600 kilometers from Gopalpur, the entire venture will become unviable. गोपालपुर वाले लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से 600 किलोमीटर दूर चले जाओ. ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, पूरा पढ़ते हैं. Moreover, we would not want our international brand image tarnished by any controversy. मतलब देखो, मैं गोपालपुर गया, ठीक है, वहाँ पे पब्लिक रेजिस्टेंस आया. PR मतलब वो PR नहीं, पब्लिक रेजिस्टेंस आया. वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से दूर चले जाओ. कितना दूर? 600 किलोमीटर. ये कंट्रोवर्सी हुई तो भाई ग्रीनस्पैन बोल रहा है कि भाई ऐसी कंट्रोवर्सी से हमारी इमेज भी खराब हो रही है और ये पूरा वेंचर अनवायबल हो जाएगा. अनवायबल मतलब इसमें पैसा डालना लॉस मेकिंग हो जाएगा. एट द सेम टाइम वी आर कीन टू एंटर द इंडियन मार्केट. DFPL is a partner we trust and would like to leverage their experience to begin our venture in the Indian market. Our shareholders primarily consist of large financial institutions. They have shown keen interest in our entry to Indian market due to potential business opportunity that the market offers. Hence, we would like to maintain their perception of these developments on a positive note. They have a power to overturn our decision if the project is found unviable. कौन बोल रहा है? ग्रीनस्पैन बोल रहा है. ग्रीनस्पैन बोल रहा है कि हम लोगों को इंडियन मार्केट में जाना है. ग्रीनस्पैन बोल रहा है कि हम लोगों को इंडियन मार्केट में जाना है. और हमारे जो शेयर होल्डर्स है किसके? ग्रीनस्पैन के. वो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो बड़े लोग हैं और उन बड़े लोगों को भी लगता है कि यहाँ पे धंधा अच्छा चलेगा. अब अगर इन बड़े लोगों को अगर पता चला कि प्रोजेक्ट अनवायबल है तो हमको बजा देंगे मतलब ग्रीनस्पैन को बजा देंगे. और वो क्या बोलेंगे कि हमारा डिसीजन वो लोग ओवरटर्न कर देंगे. ठीक है. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन जर्मनी वुड नॉट हेजिटेट टू टेक लीगल एक्शन इफ वी आर फाउंड एंगेजिंग इन प्रैक्टिसेस दैट कॉम्प्रोमाइज पब्लिक और एनवायरमेंटल सेफ्टी इन एनी ऑफ आवर फैसिलिटीज वर्ल्ड वाइड. गवर्नमेंट भी बजा देगी. मतलब ग्रीनस्पैन बोल रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट अगर अनवायबल हो गया
या एनवायरमेंटल हैजार्ड हम क्रिएट कर रहे हैं कहाँ पे, दुनिया में कहीं पे भी, तो हमारे जो शेयर होल्डर्स है वो हमको बजा देंगे और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी है वो हमको बजा देगी। कौन बोल रहा है? ग्रीनस्पैन का एमडी बोल रहा है, ठीक है। थैंक यू गेहार्ड फॉर योर कंटिन्यूड कॉन्फिडेंस इन अस। जीवन, I share Gerhard's concern and agree that we must address this issue promptly to prevent a potential public relation crisis. Both Gerhard and I want to assure you of our unwavering commitment to implementing best practices to safeguard public health and environmental safety. ये कौन बोल रहा है? वेंकट रवि। वेंकट रवि कौन है भाई? DFPL का चेयरमैन। While unforeseen events such as pipeline leak are always a possibility, we are prepared to take all necessary measures to minimize these risks and their impact. मतलब ये जर्मनी वाला बोला, उसको जवाब दे रहा है कौन? इंडिया वाला। Although government authorities have been cooperative in granting us the license for CYPL, the laws regarding social justice, public health, and environmental protection are highly stringent, leaving little room for error. कौन बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है कि हमको गवर्नमेंट ने लाइसेंस वाइसेंस तो दे दिया, लेकिन लॉज बड़े खतरनाक है, लॉज बड़े खतरनाक है और मार्जिन ऑफ एरर वो बहुत कम है। DFPL shareholders are aware of these developments, but there has been no dissenting voice yet. ग्रीनस्पैन का जो शेयर होल्डर है वो क्या ग्रीनस्पैन का एमडी क्या बोल रहा है कि हमारे शेयर होल्डर को पता चला तो हमको बजा देंगे। DFPL का जो चेयरमैन है वो क्या बोल रहा है? हमारे शेयर होल्डर्स को पता है कि ये बिजनेस रिस्की है, लॉज स्ट्रिंजेंट है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने कोई डिसेंटिंग वॉइस नहीं दी है, मतलब किसी ने कुछ ना नहीं बोला है। This may be because of our shareholding pattern is largely fragmented with more shareholders individually holding less than 2% of the total share value. यहाँ पे कैच है, जो ग्रीनस्पैन है उसके शेयर होल्डर्स है वो लिमिटेड है और पावरफुल है, और DFPL है उसके जो शेयर होल्डर्स है वो बहुत सारे हैं और लेस पावरफुल है। लेस पावरफुल मतलब इंडिविजुअली, अगर वो इकट्ठे हो जाए तो पावरफुल है, लेकिन लेस पावरफुल है इंडिविजुअली। और ये लाइन आपको बहुत काम आएगी मेंडलोस मैट्रिक्स में। अगर मेंडलोस मैट्रिक्स आपको पता है थोड़ा बहुत, अगर आपने वो चीज़ पढ़ा है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि वहाँ पे ऐसी बातें होती हैं। However, during our latest earning calls, shareholders expressed keen interest in the Gopalpur facility, expecting it to unlock significant value and generate considerable wealth. There were also inquiries about public resistance to the project while reported in media. ठीक है, मतलब पब्लिक रेजिस्टेंस जो रिपोर्ट हुई थी मीडिया में, उस पर भी हमारे जो DFPL के शेयर होल्डर्स थे उनके कंसर्न्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ चल, क्योंकि इससे आपका पूरा मेंडलोस मैट्रिक्स का आंसर बनेगा एक लेवल पे। Meanwhile, the workers union in Brahmpur is demanding a higher compensation package for relocation of workers from Brahmpur to Gopalpur. मैंने ब्रह्मपुर वालों को बोला इधर आओ ना निकलो, तो वो लोग बोल रहे ज़्यादा पैसे दो वहाँ पे आने के। CYPL can benefit from the experience and skill of these 112 workers. 112 ऐसे वर्कर्स हैं जो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, बट मीटिंग देयर डिमांड्स विल सेट अ प्रीसिडेंट। ठीक है, इफ वी ऑफर दिस पैकेज, मतलब वो लोग जो मांग रहे हैं वो पैकेज हमने दे दिया, वी विल नीड टू एक्सटेंड अ सिमिलर वन टू न्यूली हायर्ड वर्कर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल मार्केट, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट। मैंने जो 112 वर्कर्स है उनकी डिमांड अगर एक्सेप्ट कर ली तो जो न्यू हायर्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ मार्केट से, वो भी ऐसा बोलेंगे कि आप उन लोगों को रिलोकेशन के इतने पैसे दे रहे हो, चलो मुझे भी ज़्यादा पैसे दो। कौन बोलेगा? जो न्यूली हायर्ड वर्कर्स है। सिंपल बात है ना, आप लोग भी कहीं ना कहीं काम किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा बड़ी कॉर्पोरेशंस में, बड़ी कंपनीज में सैलरी डिस्कस नहीं करते। क्यों? नहीं तो बवाल हो जाता है। बड़ी सैलरी डिस्कस नहीं करते क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि आप इसको इतना दे रहे हो, इसको इतना दे रहे हो, बवाल हो जाएगा। इसलिए सैलरी हमेशा कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। वो बोल रहा है भाई अगर मैं उन 112 वर्कर्स को ज़्यादा पैसे दूंगा, नए वाला है वो भी ज़्यादा पैसे मांगेंगे। I am also aware that the union heads at our other facilities are closely watching these developments. मेरी गुजरात में, हरियाणा में जो फैसिलिटीज़ है वो भी ये सब देख रहे हैं
कि ब्रह्मपुर और गोपालपुर फैसिलिटीज में क्या चल रहा है. Currently, there is no collaboration between the unions of different locations, but mishandling these demands could sow discontent across all unions, leading to a company-wide crisis. This would be disastrous for both our operations and domestic reputation. देखो, मेरी बहुत सारी अदर फैसिलिटीज है, उसके जो एम्प्लॉय यूनियन हेड्स हैं उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. लेकिन अगर एक जगह पे कोई गड़बड़ हुई तो सारी जगह पे गड़बड़ होगी. एक जगह पे गड़बड़ हुई तो सारी जगह पे गड़बड़ होगी. बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा. कौन बोल रहा है? DFPL का चेयरमैन. किस मैटर पे बोल रहा है कि अगर इन 112 वर्कर्स को अपन ने हायर पैकेज दिया तो गोपालपुर में नए लोग भी ज़्यादा पैसे मांगेंगे. अगर नहीं दिया और बाकी के लोग भी इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत बड़ा बवाल हो सकता है. रिस्क है, रिस्क है. क्या बवाल हो सकता है नहीं बोला, रिस्क है ऐसा बोला. प्लीज गाइड अस ऑन हाउ टू मैनेज दिस डेवलपमेंट्स इफेक्टिवली. ये किसको बोल रहा है भाई? कंसल्टिंग फर्म के पार्टनर को. कंसल्टिंग फर्म का पार्टनर बोलता है इन सिचुएशंस लाइक दिस it is first important to assess the power and interest of each stakeholder influencing the issue. This assessment will help us determine the best way to communicate and with each category of stakeholder. Please allow me a few days. Blah blah blah. अपन वो Mendelow's matrix बनाएंगे इसके लिए. ठीक है. After several rounds of careful negotiations, an amicable settlement was reached between the management and the displaced worker at Brahmpur. Consequently, DFPL's facility in Brahmpur was officially closed in December 31, 2024. Production at CYPL's Gopalpur facility commenced on 1st January. खत्म हुआ वहाँ पे, यहाँ पे स्टार्ट हो गया. Additionally, issues related to public resistance to the establishment and cooperation of CYPL were fully resolved by 31st January. मतलब सारे इश्यूज जो थे जो अपन ने ऊपर डिस्कस किए वो इन डेट्स पे रिजॉल्व हो गए थे. इन डेट्स पे. करेक्ट. ठीक है. अब नया मैटर स्टार्ट होता है. इनडायरेक्ट टैक्स मैटर्स फॉर CYPL. Mr. Lalit Shah, the newly appointed finance head for CYPL, joined the company on 1st April 25. A fresh commerce postgraduate with strong academic credentials but no prior experience in the tax matters, Mr. Shah has been entrusted with preparing CYPL's GST return. मतलब ये जो ललित शाह है वो नया नया CA बना. ठीक है. रैंकर होगा लेकिन कुछ एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि काम तो करते नहीं है. सॉरी. Recognizing his limited experience in this area, he has identified the need for expert guidance to ensure accurate and compliant filing. Earlier in the week, Mr. Ramakant Bhushan, Managing Director of CYPL, also directed Mr. Shah to investigate potential recovery claims from Paradip Port Trust regarding a shipment of potash pilfered in Jan 25. पिल्फरेज हुई थी. पिल्फरेज आपने कस्टम्स में पढ़ा होगा. This incident has raised concerns about the potential financial losses and recovery options. While reviewing GST return for the period ending 30 June 25, Mr. Shah uncovered a significant issue related to the GST structure for CYPL's operations. Fertilizers, the company's end product, are taxed at a concessional rate of 5%. However, key inputs such as ammonia used in production of PK fertilizers and पैकिंग मटेरियल्स अट्रैक्ट 18% GST. मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट वो 5% पे टैक्स होता है और मेरे इनपुट्स है जो वो 18% पे टैक्स हो रहा है. ठीक है. He realizes that this structure could lead to higher working capital requirements and a significant accumulation of ITC, potentially straining the company's cash flow. Recognizing the impact, Mr. Shah is eager to explore the possibility of claiming refund of unutilized ITC under GST regulations, aiming to optimize CYPL's tax position and ensure financial stability. इसको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं. ठीक है. और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है तो क्या होगा? ITC 18% पे एक्यूमुलेट होती रहेगी लेकिन यूटिलाइज में 5% तक की कर पाऊंगा. उसमें भी वो रूल्स आते हैं कि 1% आपको कैश में पे करना वगैरह. ठीक है. तो बोलता है कि भाई इससे क्या होगा, मैं टैक्स भरूंगा. ठीक है. उससे मेरा कैश फ्लो इम्पैक्ट होगा. यहाँ पे मेरी रिकवरी कम होगी तो यहाँ पे ITC बीच में एक्यूमुलेट होगी. ITC एक्यूमुलेट होगी, वो भी प्रॉब्लम. ठीक है. To handle these complex matters, Mr. Shah, after consulting with Mr. Bhushan, reached out to a CA. अच्छा ये CA नहीं था? अच्छा था. Theory for professional advice. In his mail, he requested comprehensive guidance on several matters. मतलब जो ललित है, ये जो भाई है,
वो भाई सीए श्रीहरि के पास गए कि भाई अब हम आप हमको बचाओ, क्योंकि हम तो नए नवे ले लोगे, ठीक है। गैस लीक इन पाइपलाइन एट गैसप्रो इंडिया लिमिटेड, मेरा जो वेंडर है उधर गैस लीक हो गया। Gazpro India Limited is a well-established supplier of natural gas to various industrial and commercial companies. In the recently set up LNG facility in Gopalpur, from which it supplies natural gas to customers via a pipeline network spanning nearly 1,000 kilometers across Odisha and AP. In January 25, CYPL and GIL Gopalpur entered into a 5-year long-term contract for supply of natural gas, covering the period from Jan 25 to Jan 30. Given the large scale of CYPL's operation, it became one of the GIL's largest customers. मैं वेंडर के पीछे पीछे गया था, मैंने वहाँ पे एक फैसिलिटी एस्टेब्लिश की और उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, करेक्ट। पहले ही साल में a massive fire broke out following a gas leak that led to an explosion in GIL's underground natural gas pipeline in Odisha. इसको मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं है। The incident tragically claimed life of 15 people and caused a significant property damage. As a result, GIL was forced to halt the supply of natural gas through its pipelines in Odisha to all customers for an extended period until the safety of operations could be fully ensured. मेरा जो की रॉ मटेरियल है जिसका सिर्फ एक वेंडर है उसके उधर कांड हो गया और मुझे जो रॉ मटेरियल है वो मिलना बंद हो गया। This time was necessary for GIL's technical team to repair the pipelines and to conduct safety tests across the entire pipeline network originating from LNG facility in the region. अब एक जगह पे एक्सप्लोजन हुआ तो वापस सारी जगह पे टेस्टिंग होगा, क्यों? 15 लोग मर गए यार, इट्स अ सिग्निफिकेंट मैटर। The suspension of natural gas supply caused major disruptions for all GIL's customers, including us, who relied heavily on gas for the production of needs. CYPL also suffered significant losses due to sudden stoppage of the gas supply from GIL. अपन को भी प्रॉब्लम हुई। Despite the critical business need of natural gas, the extraordinary nature of accident made it impossible to predict when GIL would be able to resume its supply. Consequently, CYPL cancelled its long-term contract with GIL. अच्छा, उसके उधर एक्सीडेंट हो गया, मेरा की रॉ मटेरियल उसके एक ही वेंडर है, उसके उधर कांड हो गया, मुझे नहीं पता वो कब आके मुझे सप्लाई रिज्यूम करेगा, तो मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। टू मेंटेन मिनिमल ऑपरेशंस, थोड़ा बहुत तो काम करना है। इन October 25, Ramakant Bhushan, managing director of CYPL, approached Natural Gas Suppliers Limited, a competitor of GIL, for the procurement of natural gas. मैंने एक काम किया, GIL जो मेरा वेंडर था उसके कॉम्पिटिटर को पकड़ लिया। NGSL with facilities in Paradip agreed to supply natural gas, वो कॉम्पिटिटर मान गया। To secure stable procurement price, CYPL entered a 5-year fixed price contract with NGSL spanning from October 25 to September 30. मैंने उसके कॉम्पिटिटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे को धंधा तो करना है। Compared to GIL, NGSL's production capability was significantly smaller and volume of gas could supply to and the volume of gas NGSL could supply to meet CYPL's demand was much lower. बहुत कम सप्लाई मिल रही थी मुझे गैस की कंपेयर टू व्हाट द ओरिजिनल वेंडर वाज सप्लाइंग। Additionally, since the Gopalpur region is still developing as an industrial hub, there were no other alternative suppliers willing to deliver natural gas to CYPL. Therefore, NGSL became CYPL's sole supplier from October 25 onwards. मेरा जो ओरिजिनल सप्लायर था वो तो गया, GIL तो गया, अब एक NGSL ही बचा मेरा। Since CYPL is currently operating at minimal scale of production, it has lost the cost efficiencies it could generate from economies of scale. मैं अपनी फुल्ली कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा? बिकॉज जो रॉ मटेरियल मुझे मिल रहा है वो बहुत लो क्वांटिटी में मिल रहा है, इससे जो मेरा प्रोडक्शन है वो लो क्वांटिटी पे हो रहा है, और फिक्स कॉस्ट तो मेरी ओरिजिनल जो कैपेसिटी पे मैंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी, ओरिजिनल कैपेसिटी में मैंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी, फिक्स कॉस्ट सारी उस पर लगती है, सैलरी कॉस्ट। अब मेरा जो वेंडर है उधर आग लग गई तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं बोल सकता ना मैं तुम लोगों को निकाल देता हूँ, तो उनको सैलरी भी फुल अमाउंट की जाएगी। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं 10 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन करूँगा, अब उतना मुझे रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा, बहुत कम रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो मेरा प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेकिन सैलरी पूरी जा रही है, रेंट पूरा जा रहा है, मशीन का डिप्रिसिएशन पूरा लग रहा है, कॉस्ट सारी पूरी लग रही है, तो उससे क्या होगा? लॉस होगा, सिंपल।
Since CYPL is currently operating at minimum scale of production, it has lost the cost efficiency it could generate from economies of scale. Most of its cost structure consists of fixed costs that must be incurred regardless of the actual scale of production. मैंने बता दिया. CYPL had to bear fixed expenses such as loan repayment, rent, regular minimum maintenance of production facilities despite operating in minimal capacity. मैं काम कुछ कर नहीं रहा, cost सारी incur हो रही है. This increased the per unit cost of production for CYPL. However, due to regulatory constraints governed by the government subsidy mechanism and market competition, the company could not pass the increased cost of production to customers. मेरी cost बढ़ रही है, मेरी cost बढ़ रही है, तो क्या मैं ये कॉस्ट का जो इंक्रीज है वो फार्मर को पास ऑन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. क्यों? गवर्नमेंट आ जाएगी कि तुम भाव क्यों बढ़ा रहे हो. गवर्नमेंट के रेगुलेशन है, प्राइस पे कैप लगाया हुआ है, गवर्नमेंट फार्मर को सब्सिडी देती है, तो मेरी कॉस्ट बढ़े जा रही है, मेरी कॉस्ट बढ़े जा रही है, लेकिन वो मैं कॉस्ट इंक्रीज पास ऑन नहीं कर पा रहा. किसको? फार्मर्स को, कस्टमर्स को. As a result, CYPL sold fertilizers at loss, further straining its financial position. Uncertainty regarding going concern of CYPL. अब बात इतनी ख़राब हो गई, मैं इतने लॉस किए, बात इतनी ख़राब हो गई कि अब मेरे गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आ गया. क्या है? In April 26, CYPL's management is in the process of finalizing the financial statements for FY 25-26. The prolonged aftermath of GIL's pipeline explosion left the company in precarious position with no clear timeline for GIL's resumption of natural gas supplies to Gopalpur. The company has been compelled to scale down the operations to the bare minimum, which has resulted into a loss and severely impacted the revenue generation capabilities. Economies का opposite, diseconomies of scale took away the cost efficiencies that were originally expected to be garnered from such large venture. Cash flow has turned negative due to limited inflows, while outflows continue for fixed cost and interest, such as interest payment, staff salaries, rentals, plant maintenance, and upkeep, among other costs. This financial strain has raised serious concern about the joint venture between DFPL and Greenspan, which is becoming increasingly economically unviable. CYPL's management, led by Mr. Ramakant Bhushan, is uncertain about the company's ability to continue as a going concern in the near future. लॉस इतने हो गए कि अब गोइंग कंसर्न के लाले पड़ गए. The management has decided to disclose this uncertainty regarding company's going concern status in the notes to financial statements, signaling a potential risk to company's continued operation as well as management's plan to deal with these conditions. In the light of this situation, CA Bharat Chaudhary was appointed as a statutory auditor for 24-25, 25-26. The management informed him of the adverse business conditions and potential going concern issues. Recognizing the gravity of the situation, the auditor noted the company's financial instability. On 15 June 26, CA Bharat Chaudhary issued the audit report for financial year 25-26. In August 26, under the leadership of Ramakant Bhushan, CYPL established a recovery committee comprising of key managerial personnel of operation, finance, HR, and marketing, along with DFPL's executive directors and representatives of Greenspan Limited. मतलब CYPL के जो लॉसेस हुए उसकी एक रिकवरी कमेटी बिठाई, इसमें मेरी होल्डिंग कंपनी के लोग हैं, मेरी कंपनी के जो KMP है वो है और ग्रीनस्पैन की KMP है. To strengthen the committee's approach, Mr. Bhushan invited Mr. Jeevan Sampath from Pro International, the consulting firm that played a pivotal role in establishing CYPL at Gopalpur. Mr. Sampath's external perspective brought valuable insights to the company's recovery strategies. कंपनी लॉस में चल रही, तो कंपनी ने एक रिकवरी कमेटी बनाई जिसमें कौन है? मेरी जो DFPL है उसके लोग हैं, ग्रीनस्पैन है मतलब जो मेरा को वेंचर है उसके लोग हैं, अच्छा मेरे लोग हैं CYPL के, और कंसल्टिंग फर्म का पार्टनर है, कंसल्टिंग फर्म का पार्टनर. ऐसी एक कमेटी बनाई है अपन ने. ये कोई लॉ की कमेटी नहीं है, रिकवरी कमेटी है. द डिस्कशन कंक्लूडेड विद द कंसेंसस टू फॉर्मुलेट एक्शनेबल स्ट्रेटजीज फोकस्ड on securing subsidy support, implementing capital infusion, executing a market repositioning strategy, and conducting a comprehensive financial health assessment. For further details, please refer to the extract of committee's minutes. The performance assessment of Mr. Ramakant Bhushan. Due to exceptional nature of business environment CYPL is operating, it has been decided that the performance assessment of Ramakant Bhushan for 25-26, 27-28 will be based on many matrices like building supply chain resilience, taking measures to improve the market share, reducing cost, improving sales among others. मतलब जो रमाकांत भूषण का परफॉर्मेंस असेसमेंट हम करेंगे वो प्रॉफिट के बेस पे नहीं करेंगे,
वेंडर के उधर आग लगे, उसमें ये बंदा क्या करे? करेक्ट। तो इसका परफॉर्मेंस असेसमेंट हम दूसरे फैक्टर्स पे करेंगे। कौन से फैक्टर्स? जो यहाँ पे फैक्टर्स लिस्ट डाउन किए वो फैक्टर। रिजम्पशन ऑफ सप्लाईज अंडर न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद GIL गोपालपुर, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन विद NGSL। अब वहाँ पे CIL से मेरा रिजम्पशन हो गया। GIL restored its normal supply levels to the market by March 28। चलो अच्छा हुआ। NGSL had been a reliable supplier of natural gas until this point. However, once GIL resumed supplies, the management of CYPL decided to scale back the operations to originally planned levels at the time of inception of the company। वहाँ से अब मेरे जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो नॉर्मल हो जाएगी, तो मैं भी वापस अपने ऑपरेशंस को स्केल अप कर सकता हूँ। Renewing the contract with GIL was a consistent with original rationale for establishing CYPL at Gopalpur based on cost efficiencies of operating arising from economies of scale। मैंने वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट किया जैसा पहले किया था। It was proposed to terminate contract with NGSL। The final decision for termination was made on 1st April 2020। Although the original contract with NGSL was valid for 30 months until September 30, September 30 तक वो कॉन्ट्रैक्ट था। CYPL chose to exit due to the significant increase in the volume of natural gas supply it could procure from GIL। अब वो GIL आ चुका है वापस, आग से निकल के वापस, तो अब मैं इसके साथ टर्मिनेट कर देता हूँ। CYPL agreed to pay exit cost of 15 crores for terminating of contract with NGSL on 1st April। मतलब NGSL को भगा दिया, NGSL को भगा दिया जो अपना ऑल्टरनेट सप्लायर था, उसको 15 करोड़ दे दिए कि चल निकल, thank you for your services, now you can go। Following this, GIL would become the sole supplier of natural gas to CYPL। ये एक ईमेल है, रिलोकेशन कंपनसेशन पैकेज फॉर ब्रह्मपुर वर्कर्स एट DFPL। देखते हैं। Dear Mr. Ramakant, we have received an official intimation regarding the compensation package। ये किसने भेजा है? यूनियन लीडर ने। किसको? चेयरमैन को। यूनियन लीडर किस फैसिलिटी का? ब्रह्मपुर फैसिलिटी। ब्रह्मपुर फैसिलिटी कौन सी फैसिलिटी है? जो क्लोज होने वाली थी। ब्रह्मपुर फैसिलिटी कौन सी फैसिलिटी है? जो क्लोज होने वाली थी। We have received an official intimation for regarding compensation package offered by DFPL to the workers transitioning to Gopalpur। While we appreciate 5%, we would respectively reiterate our request for 15%। The move to CYPL represents an opportunity for skill development and career growth, which we recognize and value। Consequently, out of 112 workers, only 2 have opted out of this transition। However, relocating operations to Gopalpur from Brahmpur introduces additional challenges। Our families will continue residing in Brahmpur due to its superior facilities and infrastructure, necessitating daily 2-hour commute for us। The additional cost and inconvenience involved in this commute warrant a more substantial compensation adjustment। देखो आप 5% हमको दे रहे हो, बात समझ में आई, लेकिन हमारी जो फैमिलीज है वर्कर्स की, वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? वो अभी भी ब्रह्मपुर में है, और ब्रह्मपुर से गोपालपुर जाना है तो 2 घंटे का हमको ट्रैवल करना पड़ेगा डेली, जिससे इनकन्वीनियंस होगा। इसलिए आप 5 से 15 कर दो। Registered unions across DFPL's various locations, representing a combined membership of 5,000, are closely monitoring how management is handling the reabsorption of displaced workers from Brahmpur। Although our group at Brahmpur is comparatively small, our successful reintegration under fair terms will set a positive precedent, reinforcing the company's commitment to employee welfare during the strategic transitions। धमकी दे रहा है इंग्लिश में, धमकी दे रहा है इंग्लिश में कि हम भले छोटा ग्रुप है, लेकिन जो हमारी पोजीशन है वो सारी यूनियंस देख रही है, सारी यूनियंस देख रही है, और टोटल यूनियन की स्ट्रेंथ है वो 5,000 है। आपने हमारे साथ गड़बड़ की तो हर जगह गड़बड़ होगी, ऐसा धमकी दे रहा है इंग्लिश में। Our collective experience at Brahmpur facility has equipped us to contribute effectively to CYPL from day one, minimizing the need for additional training। हमको ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, हमको आता है काम। This brings immediate value to your operations। We believe that addressing our compensation request will foster goodwill among the broader workforce and demonstrate management's dedication to balancing the corporate objectives with the employee well-being। ठीक है, 15% मांग लिया उसने। दूसरा, ये इनडायरेक्ट टैक्स मैटर्स का ईमेल है। किसने भेजा है? ललित ने। किसको? श्रीहरि को। इतने सारे नाम यार, बहुत सारे नाम दे दिए। ठीक है, कौन कौन से आईडीटी के इश्यूज है? सबसे पहला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स अंडर 2 स्कीम्स। द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडियरी स्कीम फॉर फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइजर्स एंड यूरिया सब्सिडियरी स्कीम फॉर यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स। Urea is supplied to farmers
at a statutorily notified MRP. The subsidy paid to urea manufacturers is the difference between the delivered cost of urea at the farm gate and net market realization by the urea unit. Under the NBS scheme, manufacturers are allowed to set up the MRP of P&K fertilizers at reasonable levels. A fixed subsidy amount is provided to manufacturers for subsidized P&K fertilizers based on the nutrient content. In summary, government fixes the MRP for urea fertilizers, while fertilizers company like us determine the MRP for P&K fertilizers. The subsidy for urea fertilizers is the difference between MRP and cost price, while P&K fertilizers company received subsidies based on rates fixed under NBS scheme. मतलब देखो सिंपल है, हमारा जो फाइनेंस का पर्सन है ललित, वो बोल रहा है सीए श्रीकांत कि गवर्नमेंट दो तरीके से फर्टिलाइजर बिजनेस में सब्सिडी देती है, दो तरीके से। यूरिया में वो एमआरपी सेट कर देती है और एमआरपी माइनस कॉस्ट की हमको सब्सिडी दे देती है, क्योंकि हमने कॉस्ट इनकर की है और बेच हम फिक्स पे प्राइस पे रहे, तो हमारा प्रॉफिट है वो श्रिंक होता है, क्योंकि हम किसी भी कॉस्ट पे बनाए हमको गवर्नमेंट की सेलिंग प्राइस से ही हमको बेचना पड़ता है, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे देती है। और P&K फर्टिलाइजर्स है, फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइजर्स, उसमें हम प्राइस फिक्स कर सकते हैं एक लेवल पे, रीजनेबल लेवल, और गवर्नमेंट हमको फिक्स सब्सिडी दे देती है पर मंथ। मतलब सब्सिडी इज टू टाइप, सब्सिडी इज इक्वल टू यूरिया में एमआरपी माइनस कॉस्ट, एक सेकेंड, एमआरपी माइनस कॉस्ट इन केस ऑफ यूरिया, एंड P&K के केस में इट्स फिक्स सब्सिडी। इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो फिक्स्ड है, इसकी सेलिंग प्राइस है वो रीजनेबली फिक्स, बोल रहा हूँ रीजनेबली फिक्स, मतलब एकदम चार्ज नहीं कर सकता, मुझे एक कैप से चार्ज करना पड़ता है, किसको, फार्मर्स को। These subsidies ensure farmers have access to fertilizers at affordable rates and support fertilizers companies in producing this agricultural input. How is the value of supply determined for GST on fertilizers subsidized? We purchase natural gas from GIL to produce ammonia, which is used in fertilizer production. Additionally, we procure ammonia in a gaseous form from the external market. In April 25, we entered into a contract with Eastern Petrochemical Limited to supply ammonia via pipeline to our Gopalpur unit for 1 year. The contract terms were as follows. Monthly payment. CYPL will make a monthly payment to EPL with each payment due by 7th of the following month. Quarterly settlement. EPL will issue a quarterly statement of account showing quantity and value of gas supplied, payments received and payments due. Quarterly adjustment. Any differential amount mentioned in the quarterly statement must be settled by CYPL each quarter. Timeline of event. May 5, June 5, July 5. Payment of 5 crore was made each month for quarter April to June. मैंने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया अमोनिया खरीदने के लिए, उनकी टाइमलाइंस दी और एक्चुअल क्या हुआ वो बता रहे हैं। जुलाई 4, EPL issued a statement of account for April to June showing 5.9 crore is unpaid. July 18, CYPL paid balance of 90 lakh to EPL for the quarter ended June. मतलब देखो 5 का पेमेंट है, उसने स्टेटमेंट दिया 5.9 का, तो जो 0.9 था वो अपन ने पे कर दिया। कौन सी डेट को, जुलाई 18 को। When is the latest date by which EPL must issue an invoice under GST regulation for the continuous supply of gas? टाइम ऑफ सप्लाई का थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मिल रहा होगा कि इससे एक टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन बनेगा। Is the procurement of natural gas entirely exempt from GST? अच्छा, ये जो बोल्ड में है, ये जो बोल्ड में चीजें हैं, ये बोल्ड की जो चीजें हैं जो मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ, ये सब चीजें हमारे क्वेश्चंस है। देखो एक क्वेश्चन आपको पूछा है इंस्टीट्यूट ने, इनडायरेक्ट टैक्स मैटर्स, तो ये जो बोल्ड की है ना वो सारी मैटर्स है, इस काम को जवाब देना है, ठीक है।
Is the procurement of natural gas entirely exempt from GST? वो पूछ रहा है. Our managing director, Mr. Ramakant Bhushan, has requested clarification on our legal position regarding a customs duty matter involving pilferage of potash from import shipment while it was in custody at Paradip Port. In May 25, we imported 1,000 metric ton of potash from Canada, a critical ingredient for fertilizer production. The shipment was unloaded in the customs area in Paradip Port on 1st June 25. Upon clearance by proper officer on 5th June 25, it was discovered that some potash has been pilfered. Since the goods were in custody of the port trust, the customs authorities have demanded duty from the custodian under Section 45 of Section 3 of the Customs Act 1962 for the pilfered potash. The port trust has denied this liability, arguing that it is not an approved custodian under Section 45 of the Customs Act 1962 and that its possession of goods is governed by the Major Port Trust Act 1963, which exempts it from such liability. Given this context, we need clarity in the following. Do we have legal grounds to demand compensation from the port trust on the loss of goods due to pilferage? देखो, पोर्ट ट्रस्ट और प्रॉपर ऑफिसर, पोर्ट ट्रस्ट और प्रॉपर ऑफिसर के बीच में क्या डिस्कशन हुआ यहाँ पे बताया. हमको क्या पूछा है कि जो भी गुड्स पिल्फर हो गए, क्या हम उसका कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं? Would CYPL be held liable to pay customs duty on pilfered goods, or can this liability be shifted to port trust? दूसरा, पहला तो मैं pilfered goods का क्या compensation मांग सकता हूँ, नंबर 1. नंबर 2, उन pilfered goods पे customs कौन पे करेगा? port trust पे करेगा या मैं करूँगा? मैं मतलब कौन? CYPL. What are the possibilities for CYPL to claim refunds on unutilized ITC under GST law to optimize its tax position? वो बोल रहा है कि भाई अब मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड GST स्ट्रक्चर है, तो उस पर मैं आईटीसी कैसे ले सकता हूँ? अब वो जो मीटिंग हुई थी ना रिकवरी कमेटी की, उसके मिनट्स बताए, फटाफट से पढ़ लेते हैं, बहुत लंबा है. डेट, लोकेशन, चेयरपर्सन. ड्यूरिंग द रिकवरी मीटिंग सेवरल क्रिटिकल स्ट्रेटजीज वर डिस्कस्ड इन लेंथ टू एड्रेस द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस फॉर CYPL. सबसे पहले फाइनेंशियल हेल्थ असेसमेंट एंड अल्टीमेट Z स्कोर एनालिसिस. The financial discussion highlighted key financial ratios that reflect CYPL's operational efficiency and financial stability. The working capital to total assets ratio stands at 0.1, indicating a moderate level of liquidity. Liquidity बहुत कम है. The retained earning to total asset ratio is 0.0125, suggesting a limited reinvested profit relating to total assets. However, EBIT to total assets ratio is minus 0.2 points. To a concerning negative operational performance. ये बोल रहा है कि भाई ये रेशियोज है हमारे. On a more positive note, book value of equity to total liabilities ratio is 4, demonstrating a strong equity position relative to liabilities, which showcases a strong capital structure. Lastly, sales to total assets ratio is 0.1875, reveals that company's asset turnover rate, suggesting a room for improvement in asset utilization to boost revenue generation. Last line क्या बोल रही कि भाई मेरे पास जितनी असेट्स है उतना टर्नओवर मैं कर ही नहीं रहा. क्यों? मेरे पास ये वो टाइम है जब मेरा जो वेंडर है वहाँ पे आग लगी हुई थी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ था. तो क्या चल रहा था भाई? मुझे इनपुट्स नहीं मिल रहे थे तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाया था, तो मेरा जो असेट यूटिलाइजेशन था वो था नहीं. मिस्टर फेलिक्स, Chief Financial Advisor and a representative to Greenspan GmbH, proposed using Ultimate Z Score, a widely recognized financial model to assess CYPL's financial health and identify early signs of distress. He emphasized the importance of using this model in providing a comprehensive view of a company's financial position and enabling a timely decision making. The committee acknowledged the urgency of addressing these issues to stabilize the company's position. It was agreed that reaching at least a break-even point is crucial, along with enhancing sales and EBIT to improve the overall financial health and ensure long-term viability. Regular monitoring of financial ratios and periodic reporting to the recovery committee were also recommended to track progress and make timely adjustments. These measures were considered essential for steering CYPL out of financial distress and aligning it with the broader strategic goals of DFPL and Greenspan. Capital infusion proposal. Recognizing the long-term potential of CYPL's operation, committee members deliberated on a proposal to infuse additional capital to CFPL
for 26-27 financial year. This capital injection is expected to alleviate immediate financial distress and temporarily resolve the going concern issues, providing CYPL with 2-year buffer to stabilize its operation. 2 साल तक के पैसे डाल देते हैं, ये मैं सब बोल रहा हूँ. Subsidy support from the government. CEO and executive of DFPL emphasized that CYPL should optimize on government subsidies available through programs such as nutrient-based subsidy on phosphatic and potassic fertilizers, as well as the urea-based subsidy scheme. He emphasized that this financial support, though limited, could partially offset CYPL's losses. अब पढ़ के दिमाग खराब हो जाता. Market repositioning strategy. Mr. Sampath presented a market repositioning strategy to counter the ongoing crisis. सबसे पहला, addressing market shortage. Due to the reduced production of fertilizers, there was a shortage in the market. Yet demand from farmers for the Rabi and Kharif season remained strong. Market में shortage थी, लेकिन demand थी. He highlighted the growing issue of spurious fertilizers being sold by opportunistic distributors, warning that their usage could degrade soil health and cause extensive crop damage over time. क्या बोल रहा है कि मार्केट में शॉर्टेज थी तो कुछ खराब लोग अपॉर्चुनिस्टिक डिस्ट्रीब्यूटर्स स्पूरियस फर्टिलाइजर्स मतलब नकली फर्टिलाइजर्स बेच रहे थे, जिससे सॉइल खराब होता है और फसल खराब होती है. Digital and direct sales approach. To combat this, he proposed leveraging digital platforms, social media, radio, and print media to create awareness about dangers of substandard fertilizers. By selling directly to farmers through the company's website, CYPL could ensure the availability of authentic, high quality fertilizers. This can help the company increase its market reach. At the same time, it would eliminate costs like distributor commissions, etc. RFID tag implementation. He's also recommended the introduction of RFID tags to enhance product traceability, building trust and differentiating CYPL from competitors. और ये जो पब्लिक रेजिस्टेंस थी ना, उसका वो दिया है न्यूज़ आर्टिकल. मैं बोला न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने जैसे होते नहीं, पढ़ लो तो देख. इसमें बहुत सारी थियरी. ये लंबा क्यों लगा पढ़ने में, बहुत सारा टेक्स्ट था, नंबर्स थे ही नहीं पूरी केस स्टडी में. देख लो फिर अपन डिस्कस करते हैं. चलो, आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चन वाला पोर्शन पढ़ लिया है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर्स. एमसीक्यू. सबसे पहला एमसीक्यू देखते हैं. बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ऑफ CYPL's कॉन्ट्रैक्ट विद NGSL. NGSL अपना टेम्पररी नेचुरल गैस का सप्लायर था. In 26-27, it is essential to check whether the contract with NGSL is onerous or not. If found onerous, provision has to be accordingly made in case of unavoidable cost of meeting the obligations of the contract is more than the economic benefits it can derive from it. This has to be done after recognizing any impairment loss of relevant assets utilized for fulfillment of the contract. ये पहला ऑप्शन था. अपन को सही ऑप्शन निकालना है. In 26-27, it is essential to check whether the contract with NGSL is onerous or not. If found onerous, provision has to be made irrespective of whether relevant assets have impaired or not. In 27-28, CYPL should make a provision for termination of cost of agreement with NGSL for 15 crores, irrespective of whether the contract is onerous or not, since the decision to terminate the contract is finalized on 1st April 28 before the approval of financial statements for 27-28. In 28-29, as the contract with NGSL not been found to be onerous in FY 27-28, the payment of termination cost of agreement with NGSL for 15 crores need to be recognized when it is incurred on 1st April 28. ऐसा ध्यान दो. ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इंडेस क्या बोलता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो जिस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है वो उसके बेनिफिट से एक्सीड करती है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, तो आपको ये जो डिफरेंस है इसका एक प्रोविजन क्रिएट करना है अपफ्रंट.
मतलब आपको वेट नहीं करना है जब ये लॉस हो जाए, आपको एक अपफ्रंट प्रोविजन कर देना है, ठीक है। ये प्रोविजन करते टाइम एक एडिशनल गाइडेंस इंडिया आपको ये बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए आपको अगर एसेट्स यूज करते हो, एसेट्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट अब आपको लगता है कि ओनरस हो जाएगा, तो एक इंडिकेटर है कि असेट्स जो है वो इम्पेयर हो गई, तो आपको पहले इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है फिर प्रोविजन करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्यों? इंडिया साफ साफ बोलता है कि आपको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, तो ये ऑप्शन सही है, ये गलत हो गया। 3 और 4 देखते हैं। In 27-28, CYPL should make a provision of 15 crores irrespective of whether the contract is onerous or not. गलत। देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट ओनरस हो गया, ओनरस हो गया तो ही आपको इसकी पेनल्टी का प्रोविजन करना है, नहीं हुआ तो नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनरस और नॉट, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है? The payment of termination cost of agreement with NGSL of 15 crores need to be recognized when it is incurred on 1st April. अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट ओनरस हो गया तो पेनल्टी का प्रोविजन अपफ्रंट करना है, और अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओनरस नहीं हुआ तो पेनल्टी का प्रोविजन तब करना है जब वो इनकर हुआ है। अपन ने इन चारों ऑप्शंस में अपन को ये नहीं बोल रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ओनर्स है या नहीं उसको टेस्ट करो, 2-3 कंडीशंस को मिक्स करके इन लोगों ने आपको क्वेश्चन पूछा है और आपको गलत वाले एलिमिनेट करना है। तो ये इररिस्पेक्टिव वाले दो है ना, वो दो कंडीशन वाले हैं, जो जिसमें से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो ये ऑप्शन उड़ जा रहा है। तो 1 and 4 इज करेक्ट। 1 and 4 इंस्टीट्यूट का आंसर पढ़ लेना, यहाँ पे दे रखा है, और यही पीडीएफ यूज करना, बिकॉज मैंने लास्ट की स्टडी में भी बोला था कि इंस्टीट्यूट ने इधर उधर दिया हुआ है। सेकेंड एमसीक्यू, विथ रिस्पेक्ट टू CYPL's गोइंग कंसर्न इशू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? CA Bharat Chaudhary needs only to disclose the material uncertainty in the audit report under emphasis of matter paragraph, since it is already being disclosed by the management in notes to accounts. ये first option. CA Bharat Chaudhary, on becoming aware of the uncertainty relating to going concern of CYPL, needs to express an adverse opinion. यहाँ पे बोल रहा है EOM दे दो, यहाँ पे बोल रहा है एडवर्स ओपिनियन दे दो, यहाँ पे बोल रहा है डिस्क्लेमर दे दो, और यहाँ पे बोल रहा है एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दो, और in the audit report, and it shall include a separate section under the heading material uncertainty relating to going concern for year ended 31st March 26. अच्छा ध्यान दो, 700 की जो सीरीज है उसका बेसिक प्रिंसिपल यही बोलता है कि अगर मैनेजमेंट ने ट्रू एंड फेयर व्यू दिया है तो आप लोगों को अपना ओपिनियन मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन योर ऑडिट रिपोर्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाय वे ऑफ एम्फोसिस ऑफ मैटर, जहाँ पे आप पर्टिकुलर मैटर को एम्फोसाइज कर रहे हो, अदर मैटर जहाँ पे आपको जो दिल की बात है वो लिख रहे हो, की ऑडिट मैटर्स दैट वेर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग योर ऑडिट। लेकिन इन सब चीज़ों से आपका जो ओपिनियन है वो मॉडिफाई नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा है? द मैनेजमेंट हैज decided to disclose the uncertainty relating to company's going concern status in the notes to financial statements, signaling a potential risk to the company's continued operations as well as the management's plan to deal with such conditions. देखो, मैनेजमेंट बोल रहा है कि we understand that there is a going concern issue, we are ready to report it in the financial statements, और उसके लिए हम क्या स्टेप्स लेंगे वो भी हम रिपोर्ट करने वाले हैं। तो ऑडिटर कौन होता है? अपना जो ओपिनियन है मॉडिफाई करने वाला। जब मैनेजमेंट जो है सच बता रहा है तो ऑडिटर कौन होता है? ओपिनियन को मॉडिफाई करने वाला। अगर मैनेजमेंट ये बोलता कि हम ये डिस्क्लोजर नहीं देंगे, आप क्वालिफाई कर दो ओपिनियन। अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का इश्यू आइडेंटिफाई हो चुका है, मैनेजमेंट फिर भी कंटिन्यूटी बेसिस पे अपने फाइनेंशियल्स बना रहा है, ना कि रियलाइजेशन बेसिस पे, तो आप डिस्क्लेमर दे दो, ठीक है। एडवर्स ओपिनियन, अगर कोई लाइन आइटम्स इंपैक्ट हो रही है आप वो दे दो। बट यहाँ पे तो
इश्यू है, जो क्लाइंट है, जो मैनेजमेंट है, वो उसको रिपोर्ट कर रहा है और उसके इश्यूज भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यू आर नो वन टू मॉडिफाई योर ओपिनियन, यू आर सपोज टू गिव एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है, उन्होंने ऐसे का रेफरेंस दिया है, इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट द मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन। अच्छा, मैंने 700 का आपको रेफरेंस दिया बिकॉज 700 का कोर क्या बोलता है, ये ट्रू एंड फेयर है, तो आपका ओपिनियन है वो मॉडिफाई नहीं होगा, सिंपल। With reference to the appropriate model, calculate the Altman Z score for CYPL. Using this model, what can be your conclusions about CYPL's financial health? Altman Z score फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट। ऑल्टमैन जेड स्कोर, एक एडवर्ड ऑल्टमैन नाम के भाई थे जो फाइनेंस के टीचर थे किसी यूनिवर्सिटी में यूएस की। उन्होंने 1968 में डेवलप किया था मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है, ये मॉडल प्रेडिक्ट करता है द चांसेस ऑफ अ बिजनेस गोइंग बैंकरप्ट। एक बिजनेस है, उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको असेस करके प्रेडिक्ट्स द चांसेस ऑफ द कंपनी गोइंग बैंकरप्ट। अच्छा, कैसे करता है, एक उसने फॉर्मूला दी, कि इसको बोलेंगे हम जेड स्कोर, ये कुछ उसने फॉर्मूला दी। अगर ये जेड स्कोर जो है वो 0 से 1.81 के बीच में है, ये 1.23 में बता रहा हूँ, 0 से 1.81 के बीच में है, तो मतलब आपकी कंपनी डिस्ट्रेस में है, मतलब कभी भी आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। 1.81 से 2.99 के बीच में है तो उसको ग्रे जोन बोलते हैं, ग्रे जोन। कुछ कुछ जगह पे ऐसा बोलता है कि ये कंपनी अगले 2-3 साल में बैंकरप्ट हो सकती है, लेकिन मॉड्यूल ऐसा बोलता है कि नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और 2.99 से ज़्यादा है तो उसको सेफ जोन बोलता है, ठीक है। एक कोई भी फॉर्मूला दी, उसको बोला ये जेड स्कोर है। अच्छा, ये जेड स्कोर अगर इन रेंजेस में फॉल करता है तो उसका ये इंटरप्रिटेशन है। एमसीक्यू अपन को इतना ही पूछा है, मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या है, 1.2 x1, 1.4 x2, 3.3 x3, 0.6 x4, 1 x5 हैं। रुको, अपने जो ऑल्टमैन भैया है उन्होंने क्या किया, 66 पब्लिक लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का सैंपल लिया, 66 पब्लिक लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का सैंपल लिया। उसमें से 33 कंपनीज बैंकरप्ट उठाई, 33 कंपनीज सक्सेसफुल उठाई। 33 बैंकरप्ट कंपनीज और 33 सक्सेसफुल कंपनीज उठाई। उनके इनिशियली 22 रेशियोज को स्टडी करना स्टार्ट किया, 22 रेशियोज को। लेकिन उसके बाद मॉडल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था, तो उन्होंने 5 फाइनेंशियल रेशियोज को स्टडी किया। इन कंपनीज के 5 फाइनेंशियल रेशियोज को स्टडी करके ये फॉर्मूला लेके आए, 1.2 x1, 1.4 x2, 3.3 x3, 0.6 x4, 1 x5। अच्छा, ये x1 x2 x3 x4 x5 क्या है, देखो x1 क्या है, वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स रेशियो। मैंने क्या बोला था, 22 रेशियोज में से 5 इंपॉर्टेंट रेशियोज पे स्टडी कर रहा है। वो 5 कौन से हैं, सबसे पहला वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स। ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, आपकी लिक्विडिटी, कि कंपनी में लिक्विड फंड्स कितने हैं। x2 बताता है रिटेन अर्निंग्स टू टोटल एसेट्स रेशियो, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि आप कितना प्रॉफिट जनरेट करते हो। अच्छा, ये टोटल प्रॉफिट बताता है, टोटल प्रॉफिट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स टू टोटल एसेट्स, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है। क्योंकि देखो, हो सकता है, सॉरी हाँ, हो सकता है कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आपका एबिटा हाई है, लेकिन उसके सामने आपकी फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपका नेट लॉस आ रहा है। हो सकता है ना, बहुत सारे स्टार्टअप्स में ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे वो पहुंच गए, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो नेट लॉस में चल रहे, हो सकता है। तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी तो देखनी है, साथ में ऑपरेटिंग अर्निंग भी देखनी है कि अपने ऑपरेशन से कितना पैसा कमा रहे हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी टू टोटल लायबिलिटीज, मैंने बोला था पब्लिक लिस्टेड कंपनीज का उन्होंने एनालिसिस किया, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की मार्केट वैल्यू होती है, इसमें मार्केट प्राइस एंड मार्केट के फ्लक्चुएशंस को भी ये कैप्चर कर रहा है ये मॉडल। और लास्ट पार्ट, सेल्स टू टोटल एसेट्स, मतलब कितनी प्रोडक्टिविटी है मेरी, मतलब ये जेड स्कोर क्या है। एक कोएफिशिएंट लगाया मैंने लिक्विड एसेट्स टू
टोटल एसेट्स, लिक्विड ये वही वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट मतलब नेट लिक्विड एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। 1.4 लगाया मैंने किस पे, इस पे। 3.3 लगाया मैंने किस पे, इस पे। 0.6 लगाया मैंने किस पे, इस पे। और 1.0 लगाया किस पे, इस पे। अच्छा, तो आप पूछोगे कि 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 एंड 1.0 कहाँ से आया। ये कोएफिशिएंट्स डिटरमाइन हुए थे आइडेंटिफाइंग सिमिलर फर्म्स विच फेस्ड एंड सर्वाइव्ड बैंक्रप्सी। मतलब इन्हीं मॉडल्स का, इन्हीं कंपनीज का एनालिसिस करके ये नंबर्स निकाले गए स्टेटिस्टिकल मेथड से। अपन को उसमें नहीं घुसना है कि ये नंबर के पीछे का क्या लॉजिक है। ये नंबर के कुछ लोग ऐसे एस्टिमेट लगाते हैं ना, तो ये एस्टिमेट होगा या कुछ स्टेटिस्टिकल मॉडल से आया होगा, वी डोंट केयर अबाउट इट। हमें समझना क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 रेशियोज जो है, ये 5 रेशियोज ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी बैंकरप्ट होगी या कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। एक ही 5 रेशियोज है, बाकी भी रेशियोज होते हैं बट ये की 5 रेशियोज है। और इसमें ये कोएफिशिएंट लगा दो आप, तो आपका एक जेड स्कोर आता है। और जेड स्कोर को आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे। और फिर आपको डिसाइड करना है आपकी कंपनी डिस्ट्रेस में है, ग्रे जोन में या सेफ जोन में। अब कुछ सालों बाद कुछ लोग उछल पड़े कि भाई ये सिर्फ पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ही ये रेशियो काम आता है, ये जेड स्कोर काम आता है, प्राइवेट कंपनी में नहीं आता। तो कुछ लोगों ने क्या किया, इस जेड स्कोर के कोएफिशिएंट्स को रिवाइज कर दिया, अच्छा, मार्केट वैल्यू टू टोटल लायबिलिटीज। प्राइवेट कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होते, तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये वैल्यू चेंज हुई, उसकी वजह से ये सारी वैल्यूज चेंज हो गई, सारे कोएफिशिएंट्स चेंज हो गए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, x1, x2, x3 सेम रहे, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उनके भी एक ही 5 रेशियोज लेने हैं, लेकिन उसमें कोएफिशिएंट्स ये लगाना है। कौन से, 717, 847, 3.107, 0.42 और 0.998। इससे आपका जेड स्कोर कैलकुलेट होगा। उसको भी इस सेम स्केल में बिठा देना। अच्छा, ये मैंने 1.23 में बोला था ना, बाद में बताऊंगा। ये 0 to 1.23 की जो रेंज है डिस्ट्रेस की, ये प्राइवेट कंपनी के लिए, और 0 से 1.81 की रेंज है डिस्ट्रेस की, वो पब्लिक कंपनी के लिए। 2.99 दोनों के लिए सेम है। वापस से, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी the distress range is 1.81, in case of private company the distress range is 1.23, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, z स्कोर कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल है, इधर आ जाओ। यहाँ पे आपके की फाइनेंशियल रेशियोज दिए हुए हैं, ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स इज 0.1, रिटेन अर्निंग टू टोटल एसेट्स इज 0.0125, EBIT टू टोटल एसेट्स इज 0.2, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, बिकॉज अपनी प्राइवेट कंपनी है, इज 4 एंड सेल्स टू टोटल एसेट रेशियो इज 0.1875। तो ये रेशियोज मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये रेशियोज मैंने यहाँ पे छाप दिए, और वेट ये वाले ले लिए, कौन से, 717, 847, 3.107, 0.42 और 0.998। ये आ गया मेरा जेड स्कोर, कितना, 1.328। 1.328 कहाँ से, 1.23 से 2.99 के बीच में है। 1.328 जो है ऑल्टमैन जेड स्कोर, वो इन दोनों के बीच में है, मतलब नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। नीड फर्दर व्हाट, इन्वेस्टिगेशन। खत्म हो गया। एमसीक्यू का आंसर पढ़ता है। The correct answer is the Altman Z score falls in gray area of discrimination. This indicates the financial health of CYPL while not in distress does need further investigation. सिंपल था। इसमें से फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला का जो थोड़ा बहुत सेंस था वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। ओके, फोर्थ एमसीक्यू, which of the following will not be helpful in improving the long term sustainability of sales and EBIT of CYPL? लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या यूजफुल नहीं होगा। सबसे पहला, अंडरटेकिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस टू वीड आउट अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स सिंस दिस वुड मीन दैट देयर आर स्मॉलर नंबर ऑफ कस्टमर्स। अच्छा, ये तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में हेल्पफुल होगा, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। हमको विल नॉट ढूंढना है, ये तो विल है, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दैट विल बिल्ड अ बेटर रेपुटेशन एंड मार्केट शेयर, ये भी गलत ऑप्शन है। क्यों, ये तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा। Once GIL supply resumes,
there can be reliance on supply of natural gas from a single source since GIL is a major supplier of natural gas within the country. Alternate suppliers for natural gas procurement would not be needed. अरे भाई this would not be helpful. इसी की वजह से तो वाट लगी थी पूरे बिजनेस की इतने सालों तक. हमने क्या किया, नेचुरल गैस के लिए सिर्फ एक ही फर्टिलाइजर, एक ही सप्लायर पे हमने भरोसा किया, उसके उधर गैस की पाइपलाइन फटी, अपना सारा बिजनेस गोइंग कंसर्न तक का इम्पैक्ट आ गया था. तो दिस would not be helpful in improving the long-term sustainability. Tackle the problem of spurious fertilizers and engage with farmers to educate them. ठीक है, तो this is the right option. ऑप्शन सी. ठीक है, जस्ट ये इसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, इसमें आपने केस स्टडी पढ़ी होती तो आपको आइडिया आ जाता कि भाई जिस चीज़ से वाट लगी अपनी बिजनेस की, वही तो चीज़ हमको नहीं करनी है, एक ही सप्लायर पे भरोसा नहीं करना. Next, which of the following is remuneration committee most likely not to consider as a part of Ramakant Bhushan's performance assessment for 26, 27, 27, 28? अच्छा, रामाकांत भूषण के परफॉर्मेंस असेसमेंट में सिर्फ वही चीज़ें कंसिडर होंगी जो इसके सुपरविजन में या इसके परव्यू में थी. मतलब फॉर एग्जांपल आप मेरा परफॉर्मेंस असेसमेंट कर रहे हो मेरा, तो आप ये देखोगे ना कि आईसीआई ने जितनी आईबीएस की केस स्टडी दी थी उसमें से मैंने कितनी करवाई, कितनी क्लैरिटी से करवाई, कैसा गाइडेंस दिया. आप ये तो नहीं देखोगे ना कि आईसीआई ने जितनी आईबीएस की केस स्टडीज डाली उसके ऊपर, मतलब आईसीआई को 100 केस स्टडी डालनी चाहिए थी, उसने 90 डाली, तो इसका जो मुझे फटका मुझे नहीं पड़ेगा 10 का. क्यों? ये आईसीआई का काम है, मेरा काम नहीं है. तो जो काम मेरा है नहीं उसके बेसिस पे मेरा परफॉर्मेंस असेसमेंट नहीं होगा. सिमिलरली जो इस बंदे का काम नहीं है उसके बेसिस पे उसका परफॉर्मेंस असेसमेंट नहीं होगा. तो ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ें रेम्यूनरेशन कमेटी कंसिडर नहीं करेंगी. सबसे पहला, इंक्रीज इन सब्सिडी सपोर्ट अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इफेक्टिव September 26 दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूविंग द कंपनीज हेल्थ. ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, इसमें रमाकांत भूषण क्या करेगा? ये तो गवर्नमेंट ने दी और इसने ले ली, तो ये चीज़ जो है सब्सिडी वो इसके परफॉर्मेंस असेसमेंट में कंसिडर नहीं होंगी. तो ये ऑप्शन सही है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RFID टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स एंड इनिशिएटिंग डायरेक्ट सेल्स, हाँ ये होगी कंसिडर, ये होगी, तो ये गलत ऑप्शन है. लीडिंग नेगोशिएशंस टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विद NGSL ensuring that from April 26 GIL becomes the sole supplier. देखो ये जो सिचुएशन है ये कोई नई सिचुएशन नहीं है. ये सिचुएशन इज द रिस्टोरेशन ऑफ द प्लान्ड सिचुएशन. ये एक रिस्टोरेशन ऑफ प्लान्ड सिचुएशन है. इसमें ये रमाकांत भूषण ने कोई नई चीज़ नहीं की, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा इसके परफॉर्मेंस असेसमेंट में. सिमिलरली, स्पेयर हेडिंग नेगोशिएशंस टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट विद GIL ensuring द रिजम्पशन ऑफ नेचुरल गैस सप्लाईज, ये भी सेम चीज़ है कि भाई दिस इज द रिस्टोरेशन ऑफ द अर्लियर स्टेटस. इसमें कुछ इसने नया नहीं किया है, तो ये तीनों चीज़ें कंसिडर नहीं होंगी. 1, 3, 4 हम ऑप्शंस देखते हैं. 2 and 4, तो 2 तो कंसिडर होगी, तो 2 इज द रॉन्ग ऑप्शन. इसमें भी 2 है तो ये रॉन्ग ऑप्शन है. 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. 3 ओनली इज द रॉन्ग ऑप्शन. तो आंसर आएगा आपका 1 and 3. 1 and what? 3. जस्ट अ सेकेंड. आ जाओ. नेक्स्ट MCQ. In September 25, in the immediate aftermath of the pipeline accident, which of the following could have possibly occurred? सबसे पहला ऑप्शन, bargaining power of natural gas suppliers increased. दूसरा ऑप्शन, bargaining power of CYPL increased. तीसरा ऑप्शन, threat of substitute of natural gas increased. फोर्थ ऑप्शन, threat of new entrants increased. देखो ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये आपको पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल में मिलेंगे. पोर्टर्स 5 फोर्सेस. मैंने अभी एक SCMP का एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने जितने भी SCMP के कॉन्सेप्ट्स करवाए वो काट काट के एक वीडियो में डाल दिए. उसमें आपको ये मिल जाएगा. कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ. बार्गेनिंग पावर ऑफ CYPL तो इंक्रीज हो नहीं सकता. क्यों? इसका बार्गेनिंग पावर तो उल्टा कम हो गया. मैंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करके बैठ गया, मैंने एक बहुत बड़ी फिक्स कॉस्ट इनकर करके बैठ गया, लेकिन मेरा प्राइमरी रॉ मटेरियल का सप्लायर ही दिवालिया हो गया. तो अब मुझे मार्केट से किसी भी भाव में वो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो मेरा बार्गेनिंग पावर डिक्रीज हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ. तो ये ऑप्शन गलत है. थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ नेचुरल गैस इंक्रीज. फर्टिलाइजर्स में नेचुरल गैस इज द प्राइमरी रॉ मटेरियल, तो उसका सब्सटीट्यूट हो नहीं सकता, तो इसका थ्रेट भी आ नहीं सकता. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इंक्रीज. नेचुरल गैस का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हर कोई नहीं कर सकता. दे नीड अ हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसमें नए एंट्रेंस का थ्रेट बहुत कम रहता है. तो आपका सही ऑप्शन क्या है?
ए बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स इंक्रीज। लॉजिकली भी सोचो, पूरे देश में एक सप्लायर था नेचुरल गैस का, उसकी वाट लग गई, तो अब जितने भी छोटे छोटे सप्लायर्स है वो अब चौड़े हो जाएंगे कि भाई मैं जिस प्राइस पे आपको नेचुरल गैस दे रहा हूँ उसी पे आपको लेना पड़े। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is the primary reason DFPL and Greenspan GmbH entered into a joint venture for Gopalpur facility instead of pursuing a strategic alliance? A joint venture allows both DFPL and Greenspan GmbH to share ownership and control of the new entity, ensuring efficient management of operations at Gopalpur facility. देखो प्राइमरी रीजन मतलब हो सकता है चारों सही हो, लेकिन सबसे बेस्ट फिट ऑप्शन क्या है? A joint venture provides DFPL with exclusive access to Greenspan's fertilizer patents and formulas, while strategic alliance would limit DFPL's ability to fully integrate Greenspan's technology and intellectual property. नहीं, अगर मैंने स्ट्रैटेजिक अलायंस में ऐसा अग्री किया है, स्ट्रैटेजिक अलायंस में मैंने ऐसा अग्री किया है कि मुझे आपके पेटेंट्स एंड फॉर्मूलाज का एक्सेस मिलेगा, तो मुझे जेवी करने की जरूरत नहीं थी, तो दिस ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन। DFPL and Greenspan opted for a joint venture because it would give them more flexibility in managing and scaling Gopalpur facilities operations independently without the need of shared decision making. नहीं, जॉइंट वेंचर का तो एसेंशियल गोल होता है शेयर डिसीजन मेकिंग, तो ये ऑप्शन भी गलत है। A joint venture allows DFPL to maintain shared control over operations at Gopalpur facility, but Greenspan's role is restricted to supplying machinery and technology with no involvement of management. ये भी गलत है, जेवी में इक्वल डिसीजन मेकिंग है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इंस्टीट्यूट भी बोल रहा है ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, करेक्ट। तो ये आपके एमसीक्यूज डिस्कस हो गए। लेट्स मूव टू डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ये थोड़ा मैं क्विकली कर रहा हूँ बिकॉज सी डिस्कशन नेचर के एमसीक्यूज है, नया कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, एमसीक्यूज के ऑप्शन देख के आप दिमाग लगा पा रहे हो, ठीक है। इन हिज ऑफिस मिस्टर जीवन आस्क्स यू, जीवन कौन है भाई? वो कंसल्टिंग फर्म का पार्टनर, to categorize the stakeholders based on their power and interest in the issues affecting Gopalpur and Brahmpur facilities. Your tasks are, सबसे पहला, analyze the stakeholders' level of interest and influence using Mendelow's matrix for both the Gopalpur and Brahmpur facilities. Second, advise CYPL on an action plan to effectively manage these stakeholders based on your analysis. Next question, how should CA Srihari advise Lalit Shah on the various indirect tax matters concerning CYPL? अच्छा, ये मैटर्स कहाँ पे दी हुई है? ये मैटर्स यहाँ पे दी हुई है, तो क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ पे है। बात समझ में आई? मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ 5 मिनट, आप तब तक ये देखो। अच्छा, तब तक एक काम करो, ये जो मेंडेलॉस मैट्रिक्स है ना, इसका मैंने बहुत छोटा सा कंसेप्ट उस वीडियो में मैंने करवा रखा है, जो मैंने SCMP का कॉन्सेप्ट वीडियो बोला, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 5 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें डिग डाउन अपन अभी इस क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन ये तब तक देख लो, 5 मिनट का ब्रेक लो और ये तब तक देख लो, मैं भी ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लो, ये देख लो, और फिर अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ब्रेक लेने के लिए, ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। आ जाओ, चलो, आई होप आप लोगों ने वो मेंडेलॉस मैट्रिक्स का 5 मिनट का सेक्शन देख लिया था। कंसेप्ट उतना ही है, बस उसको अप्लाई करना है। मैं वापस से एक बार क्विकली वो कंसेप्ट बोल दे रहा हूँ कि आपको रिकनसाइल हो जाए। मेंडेलॉस मैट्रिक्स या पावर इंडेक्स ग्रिड आपके बिजनेस के जितने भी स्टेक होल्डर्स है, मैं शेयर होल्डर्स नहीं बोल रहा हूँ, स्टेक होल्डर्स है, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है, और 4 कैटेगरी में डिवाइड करके मेंडेलॉस मैट्रिक्स ये बोलता है कि उन 4 कैटेगरी के प्रति आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। 4 कैटेगरीज क्या है? हाई पावर, लो इंटरेस्ट, हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, लो पावर, लो इंटरेस्ट, लो पावर, हाई इंटरेस्ट। अच्छा, हाई पावर और लो इंटरेस्ट वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट्स, रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी हो गया वगैरह, उनको कीप सेटिस्फाइड, मतलब उनसे पंगा मत लेना, उनसे पंगा मत लेना। हाई पावर हाई इंटरेस्ट है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट है, मैनेज क्लोजली, मतलब वो जो बोले वो करना है, वो जो बोले वो करना है, लेकिन इनसे पंगा नहीं लेना, ये जो बोले वो करना है, लेकिन इनसे पंगा नहीं लेना। अच्छा, लो पावर लो इंटरेस्ट, लो पावर लो इंटरेस्ट, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस मिनिमम एफर्ट जो वो आपके लिए करती है वो, ठीक है। लो पावर लो इंटरेस्ट। अच्छा, लो पावर हाई इंटरेस्ट, लो पावर हाई इंटरेस्ट, कीप इन्फॉर्म। देखो, हाई इंटरेस्ट है इसलिए उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा अगर कुछ करना है ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनका पावर लो है, उनका पावर लो है, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्यों? उन पे अफेक्ट आएगा, लेकिन क्या उनका पावर है? क्या वो कुछ अपना उखाड़ सकते हैं? नहीं,
ठीक है, तो सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए कैटेगराइजेशन क्या होगा, ध्यान देना। ये पावर है, ये इंटरेस्ट है, हाई लो हाई हाई लो 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 हाई, समझ में आई बात। अच्छा, हाई पावर और लो इंटरेस्ट में जर्मन गवर्नमेंट को मैंने क्यों लिखा है, क्यों रखा है, ध्यान दो। यहाँ पे एक आपको पैराग्राफ पढ़ने मिलेगा, देखो। They have power to overturn our decision if found to be unviable. It is also important to note that government authorities in Germany would not hesitate to take legal action if we are found engaging in the practices that compromise public or environmental safety at our facilities worldwide. जर्मनी की गवर्नमेंट को क्या अपने जो जॉइंट वेंचर के प्रॉफिट से कुछ लेना देना है, नहीं। तो इंटरेस्ट क्या है, लो, लेकिन पावर क्या है, हाई। जर्मनी की गवर्नमेंट बजा देगी, जर्मनी की गवर्नमेंट क्या करेगी, बजा देगी। तो हाई पावर लो इंटरेस्ट में रखा है। अच्छा, लो पावर लो इंटरेस्ट में कौन रखा है, स्मॉल रॉ मटेरियल सप्लायर्स। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये जब CYPL का जॉइंट वेंचर बना तब इन लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले नेचुरल गैस की सप्लाई को सॉर्ट किया था। मतलब नेचुरल गैस की सप्लाई को उन लोगों ने उस पर ज़्यादा फोकस किया था, GIL के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। और बाकी जितने भी रॉ मटेरियल्स है उनके लिए ये स्मॉल छोटे छोटे रॉ मटेरियल सप्लायर से लेस देन 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेस देन 1 ईयर का। तो ये वही लोग हैं। अच्छा, इनका पावर भी लो है, इनका इंटरेस्ट भी लो है, इनको अपन से फ़र्क नहीं पड़ता, अपन को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये स्मॉल रॉ मटेरियल है, इनको इन पर बस नज़र रखो, इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, हाई पावर हाई इंटरेस्ट में कौन कौन आता है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ DFPL। DFPL कौन है, होल्डिंग ऑफ CYPL। तो ये तो हाई पावर हाई इंटरेस्ट में है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मेरी होल्डिंग कंपनी के। सिमिलरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ग्रीनस्पैन, ये भी हाई पावर हाई इंटरेस्ट में आएंगे। अच्छा, शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रीनस्पैन, इधर आओ, शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रीनस्पैन इधर आओ। आर शेयर होल्डर्स, कौन बोल रहा है, ये जर्मनी वाला, वो बोल रहा है आर शेयर होल्डर्स प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, दे वुड लाइक टू मेंटेन देयर परसेप्शन ऑफ दीज डेवलपमेंट्स ऑन अ पॉजिटिव नोट। लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब मेरे जो शेयर होल्डर है वो बड़े लोग हैं। अगर वो बड़े लोग हैं तो उनका पावर और उनका इंटरेस्ट भी हाई होगा। अगर वो बड़े लोग हैं तो उनका पावर और इंटरेस्ट दोनों हाई होगा। तो उसको मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, जर्मनी की गवर्नमेंट को मैंने लो इंटरेस्ट बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने हाई इंटरेस्ट बोला है। क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इंडिया के फार्मर्स को सस्ता फर्टिलाइज़र और अच्छा फर्टिलाइज़र मिले। जर्मनी की गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया की गवर्नमेंट को पड़ता है, इसलिए ये हाई पावर हाई इंटरेस्ट में रखा है। ठीक है, और हाई इंटरेस्ट बट लो पावर, फर्क पड़ता है लेकिन कर नहीं सकते कुछ, फर्क पड़ता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, फर्क बहुत पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। कौन है, ब्रह्मपुर के एम्प्लॉयज़। भाई ब्रह्मपुर में 112 एम्प्लॉयज़ है आउट ऑफ टोटल 5000। क्या उखाड़ लेंगे ये लोग कंपनी का, कंपनी एज अ होल का, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता। GIL, अच्छा GIL मतलब मेरा जो सोल सप्लायर है, वो सोल सप्लायर, उसका इंटरेस्ट हाई है। क्यों, क्योंकि CYPL इज़ अ मेजर कस्टमर फॉर GIL। लेकिन वो कुछ कर सकता है क्या, वो हमारे डिसीजंस में कुछ इंटरफियर कर सकता है, वो तो मेरा सप्लायर है, कुछ नहीं कर सकता। तो वो भी हाई पावर लो इंटरेस्ट। अच्छा, शेयर होल्डर्स ऑफ DFPL, इधर आओ। शेयर होल्डर्स ऑफ DFPL को मैंने हाई इंटरेस्ट और लो पावर में क्यों रखा है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगी, DFPL शेयर होल्डर आर अवेयर ऑफ दिस डेवलपमेंट बट देयर हैव बीन नो डिसेंटिंग वॉइस येट, दिस मे बी बिकॉज आवर शेयर होल्डिंग पैटर्न इज लार्जली फ्रैगमेंटेड। मतलब बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जिनकी कोई औकात नहीं है ज़्यादा हमारे यहाँ के, ऐसा बोल रहे हैं। और एम्प्लॉय यूनियंस जो बाकी की एम्प्लॉय यूनियंस है। अच्छा, केस स्टडी में तो ऐसा बोला था कि अगर एम्प्लॉय यूनियंस इकट्ठी हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कंपनी के लिए। लेकिन लो पावर में क्यों रखा है, उसका रीज़न है बिकॉज ये जो एम्प्लॉय यूनियंस है उनका आपस में कोई कोलैबोरेशन नहीं है। अगर उनका आपस में कोलैबोरेशन होता सारी एम्प्लॉय यूनियंस का, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता अगर सारी एम्प्लॉय यूनियंस का कोलैबोरेशन होता। लेकिन सारी एम्प्लॉय यूनियंस स्कैटर्ड है, अलग अलग है, तो उनका इंडिविजुअली कोई पावर
नहीं है। तो ये आपका कैटेगराइजेशन हो गया, ये आपका कैटेगराइजेशन हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें पूछी है, एनालाइज द स्टेक होल्डर्स लेवल एंड इन्फ्लुएंस यूजिंग मेंडलोव्स मैट्रिक्स फॉर गोपालपुर एंड ब्रह्मपुर फैसिलिटीज, ये आपने एनालिसिस कर लिया और मैट्रिक्स बना के। अब एडवाइस ऑन द एक्शन प्लान, एक्शन प्लान देखना पड़ेगा। इसमें मैं इंस्टीट्यूट का डायरेक्टली आपको आंसर दिखा रहा हूँ, बिकॉज एनीवेज अपन को यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेक होल्डर मैपिंग मैं नहीं पढ़ रहा, वो आप पढ़ लेना, अपन ने जो अभी डब्बा बनाया उसमें आ गया था। एक्शन प्लान पढ़ते हैं, एक्शन प्लान, ठीक है। इंटरेस्ट लो पावर लो, इंटरेस्ट लो पावर लो, कुछ नहीं करना है। CYPL ओनली नीड्स टू मॉनिटर दी स्टेक होल्डर्स एंड कीप अ चेक ऑन वेदर देयर इज एनी चेंज इन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट और पावर। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे 10 रॉ मटेरियल्स थे, ठीक है, उसमें से एक है नेचुरल गैस, ठीक है, और बाकी के 9 छोटे मोटे रॉ मटेरियल्स। अब ये छोटे मोटे 9 रॉ मटेरियल्स में से कोई ऐसा रॉ मटेरियल सप्लायर है जिसका स्केल बहुत बढ़ गया, या कोई ऐसा एसेंशियल रॉ मटेरियल है जिसकी सप्लाई शॉर्ट हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो बस इंटरेस्ट और पावर पे चेक रखो कि यहाँ पे कोई गड़बड़ या चेंजेस तो नहीं हो रहे। लो इंटरेस्ट हाई पावर, जर्मन गवर्नमेंट क्या करना पड़ेगा, ग्रीनस्पैन GmbH नीड्स टू कीप देम सेटिस्फाइड विद द कंप्लायंस ऑफ सोशल जस्टिस, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी। मतलब जर्मन गवर्नमेंट जो भी बोले वो करना पड़ेगा, जर्मन गवर्नमेंट जो भी बोले वो करना पड़ेगा, उससे पंगा नहीं ले सकता है। क्यों? इंटरेस्ट कम है, पावर बहुत ज़्यादा है उनका। हाई पावर, हाई इंटरेस्ट लो पावर, हाई इंटरेस्ट लो पावर, हाई इंटरेस्ट लो पावर कौन? ब्रह्मपुर के एम्प्लॉयज़, फिर GIL वगैरह, उसमें अपन पढ़ते हैं फटाफट से। Employees working at Brahmpur facilities, GIL, shareholders of DFPL and worker unions fall under this category. अपन ने चेक किया। Adequate interactions with these parties can help CYPL identify any area where improvement can be made. However, since they have low power, मैंने बोला था औकात कुछ नहीं है, इंटरेस्ट बहुत है, औकात कुछ नहीं है, to influence the outcome of these developments, the group should only keep informed to assure that no major issues are arising. No major issues are arising. At the same time, while they have low power by themselves, they may join forces that wields power. मैंने क्या बोला था कि अगर ये सारी एम्प्लॉय यूनियंस इकट्ठा हो गई तो ये यहाँ पहुँच सकती है, एंड यहाँ पहुँच गई तो फिर ये जो बोले वो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देख लेना यार, आप पढ़ोगे तो आपको भी एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि भाई कैसे लिखना है, और अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको बुक तो कैरी करके ही जाओगे। हाई इंटरेस्ट हाई पावर, हाई इंटरेस्ट हाई पावर, BOD of DFPL, BOD of Greenspan, Indian government, shareholders of Greenspan. These are key stakeholders and developments at Gopalpur and Brahmpur facilities. It is important to manage closely to engage with them and keep them satisfied about these issues. मतलब ये 4 लोग जो बोले वो करना पड़ता है, ये जो 4 लोग बोले वो करना पड़ता है। तो ये था, इसमें ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि आप इसका कैटेगराइजेशन कैसे करोगे, फिर तो ईजी हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन क्या था? हाउ CA श्रीहरि एडवाइस मिस्टर ललित शाह। अच्छा, ये वाला, ये 1 2 3 4 5 6 इश्यूज पे हमको GST पर्सपेक्टिव से कमेंट करना है, कर देते हैं। चलो आ जाओ, इसमें भी इंस्टीट्यूट के आंसर देख लेते हैं, कुछ माथा को टाइम नहीं ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे इश्यूज दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस का अपन को जवाब देना है। हाउ इज़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड फॉर GST ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडाइज। 15(2) में बोला गया है क्लियरली, 15(2) में ऑफ CGST बोला गया है कि सब्सिडीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो सिंपल वही लिख के आना है कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से सब्सिडी के अमाउंट को लेस करना है। सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, देयरफॉर व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी इज नॉट एडेड। खत्म करो यार, मतलब GST में ना मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप सब चैंपियन हो GST के। फटाफट से देख लेते हैं। What is the latest date by which EPL must issue an invoice under GST regulations for continuous supply of gas? Continuous supply of services वाला आपका जो प्रोविजन है वो टाइम ऑफ सप्लाई का देख लो फटाफट से। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। As per 31 subsection 4 of CGST Act, in case of continuous supply of goods, while successive statement of account or successive payments are received, invoice is issued before or at the time of issue of such statement or payment. मतलब देखो, EPL should issue invoice of 5 crore on 5th May, 5th June, and when monthly payments are received, and further invoice should be issued for the differential 0.9.
पाँच पाँच और 0.9, ठीक है 5.9 बिफोर जुलाई 4 व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज इशूड। यहाँ पे देख लो ना यार क्या बोल रहा है, 5 मई 5 जून और जुलाई 7 पेमेंट ऑफ 5 करोड़ वॉज मेड ईच मंथ। जुलाई 4 को स्टेटमेंट इशू कर दिया तो जुलाई 4 को ही पूरा इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, भले पेमेंट 7 को किया है लेकिन जुलाई 4 को ही ये वाला इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, मतलब 5 मई 5 जून एंड 4 जुलाई। ठीक है, सिंपल था यार, कुछ नहीं था इसमें। इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ नेचुरल गैस एंटायरली एग्जाम फॉर जीएसटी? अभी परव्यू में ही नहीं आता तो एग्जाम्प्ट नहीं है, टैक्स फ्री नहीं है, ऐसा बोलना है अपन को। इट इज़ नॉट एग्जाम्प्ट बट इट इज़ आउट ऑफ परव्यू ऑफ जीएसटी, उस पर स्टेट टैक्स लगाती है। क्या बोला है यहाँ पे? इज नॉट एंटायरली टैक्स फ्री एज पर सेक्शन 9(1). जीएसटी इज नॉट लेविएबल ऑन नेचुरल गैस करंटली। ये सब बहुत बेकार चीज़ पूछ रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले, मतलब इतना डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए। What are the possibilities for CYPL to claim refunds on unutilized ITC under GST to optimize its tax position, maintain financial stability? ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है तो इस पे रिफंड आपको मिलता है, रिफंड ले लो आप, रिफंड के प्रोविजंस फॉलो करके, सिंपल। अच्छा ये रह गया नहीं, do we have any legal grounds to demand compensation from port trust for loss of goods due to pilferage? Or second, would CYPL liable to pay customs duty on pilfered goods? Or can this be liability be shifted to port trust or any other entity? ऐसा डायरेक्ट केस लो आता है आपके कस्टम्स में कि पोर्ट ट्रस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द कस्टम ड्यूटी, और आप पोर्ट ट्रस्ट के पास जाके कुछ मांग नहीं सकते अंडर कस्टम्स एक्ट, लेकिन एज द बेली आप मांग सकते हैं क्योंकि उनके पास जो गुड्स है वो एज अ बेलर की कैपेसिटी में आपके उसके पास पड़े थे। देख लो यार फटाफट से। द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर टू बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखा क्या बोलता है? When High Court held that the language of Section 45 subsection 3 of the Customs Act 1962, liability to pay duty is on the person in whose custody the goods remain as an approved person under Section 45 of Customs Act। अच्छा, पोर्ट ट्रस्ट जो है वो पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के अंदर गवर्न होती है तो वो अप्रूव्ड पर्सन नहीं है किसमें? कस्टम्स एक्ट में। who do not require any approval, Port Trust Act, who do not require any approval under Section 45 subsection 1 are not covered under 45 subsection 3 of the Customs Act 1962. Thus, the department cannot demand duty from Port Trust. Therefore, CYPL can also not demand the Port Trust to pay the duty because Port Trust की कोई जवाबदारी नहीं है तो वो ड्यूटी क्यों पे करे? However, CYPL can hold Port Trust as a bailey of goods liable for the value of potash that has been pilfered. ठीक है। CYPL cannot be held liable to pay duty on pilfered goods। ठीक है, अगर रिस्टोर हो गया तो पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर पिल्फर्ड है तो उतने पोर्शन पे ड्यूटी पे नहीं करनी। और ये बोल रहा है कि रिफंड प्रोविजंस आप फॉलो करके उसका आईटीसी ले लो, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है, जीएसटी वाला पोर्शन मैंने थोड़ा उड़ाया है बिकॉज ऑनेस्टली आईबीएस की एग्ज़ाम के एक दिन के पहले आप लोग जीएसटी का पेपर लिखोगे, और अगर ऐसे क्वेश्चंस में मुझे बोलना पड़े तो फिर जीएसटी के टीचरों को देखना बंद कर दो, मुझे देखो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है ना। चलो हो गया ये भी आपकी 4 मेन केस स्टडीज़, 2 स्टूडेंट जर्नल की, 2 आरटीपी की क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये 4 तो मस्ट डू है। उसके बाद जो एडिशनल सेट है 10 केस स्टडीज़ का अपन अब वो डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है।